Good morning, students. Today we will start our new chapter of social science, weather and climate. Chapter 3, weather and climate. Learning objectives. Student will aware about difference between weather and climate. They will know about factor influencing climate. They will understand the heat zone. Here are the contents which we will discuss in this chapter. First, difference between weather and climate, distance from the equator, height above the sea level, distance from the sea breeze and land breeze, direction of winds, humidity and rainfall, heat zones. So first, student, we will discuss here about the difference between वेदर एंड क्लाइमेट. कभी कभी हम स्कूल जाते हैं तो बारिश होती है, पर जब हम वापस घर आते हैं तो धूप खिल रही होती है. अब हर दिन के हालात में आने वाले चेंजेस को हम वेदर कहते हैं. Weather is the condition of air, temperature, wind, air pressure, rainfall and humidity that prevail over a small area and for a short period of time. अब आपने देखा, जब आप स्कूल गए तो बारिश थी, जब घर वापस आए तो क्या था, धूप खिली हुई थी. तो चेंज था वेदर. ये सब क्यों होता है? पृथ्वी को सूर्य से जितनी धूप की मात्रा मिलती है ये उस पर डिपेंड करता है. लेट्स नो अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर. वेदर देखो, सनी, विंडी, मॉनसून, कोल्ड. ये मतलब अभी आज अगर हम देखेंगे धूप निकली है, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे हवा चलने लग जाती है और रेन स्टार्ट हो जाती है. So this is weather. Weather keep on changing. It mean weather जो है वो थोड़ी देर में भी बदल सकता है. There are three main season in India: summer, winter and monsoons. So हम देखो, जब गर्मी होती है उस टाइम हम क्या कपड़े पहनते हैं? कॉटन के. एग्जैक्टली जब मॉनसून होते हैं तो हम अपने को बारिश से बचाने के लिए छाते का या रेनकोट का यूज़ करते हैं. जब विंटर्स आती हैं तो हम ऊनी कपड़े पहनना पसंद करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस क्लाइमेट. तो क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट इज अ वेदर कंडीशन दैट प्रिवेल्स ओवर अ वास्ट एरिया एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. As we know, we have 3 seasons: summer, winter, monsoon. तो अब देखो, समर कितनी देर के लिए रहता है? 6 to 7 months. विंटर्स 4 months. मॉनसून 2 months. एग्जैक्टली. तो अब हमने यहाँ क्या नोटिस किया कि जो सीजन्स हैं वो लंबे समय तक फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए रहते हैं. दिस इज कॉल्ड क्लाइमेट. इट इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड. ये हर एक पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट क्लाइमेट हर जगह का होता है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ हॉट थ्रू आउट द एयर इन द इक्वेटोरियल रीजन, वाइल सम एरिया लाइक द पोलर रीजन रिमेन कोल्ड ऑलमोस्ट द होल एयर अराउंड. So climate and weather both influence the lifestyle, food, house, dress and economic activity of the people living in region. जहाँ पर भी लोग रहते हैं वो क्लाइमेट और वेदर के ऊपर डिपेंड करते हैं. जैसे अब हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है नॉर्थ एरियाज़ में, तो यहाँ पर हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं. इसी तरह जून जुलाई में अगर हम शिमला और ऊटी की बात करें, वहाँ पर लोग थोड़े वार्म कपड़े पहनते हैं, बिकॉज सेम टाइम में यहाँ का क्लाइमेट और वहाँ के क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. देयर मेन ऑक्यूपेशन
is fishing and hunting. When we compare this with region having moderate temperature, we can find the difference in the dress and living. Moderate region जहाँ पर समुद्र के किनारे एक जैसा मौसम होता है, वहाँ पर लोगों का ऑक्यूपेशन क्या होता है? मछली पकड़ना. So students, our next topic is factor influencing climate. These points are very important. There are several factors that influence the climate of an area. The sun is the main source of heat and light on earth. ये पूरे वर्ल्ड में जो हीट और लाइट का जो सोर्स है वो सन है. It influences the climate of a place to a great extent. First factor is distance from the equator. All parts of the earth do not receive the same amount of sunlight. हर एक जो धरती पर सूर्य की किरणें जो हैं वो एक जैसी नहीं पड़ती हैं. Sun rays fall directly over the equator and spread over a small area, making this region hotter. The rays become slanting, covering a wider area, due to which these areas are colder. इसको हम कैसे समझेंगे? देखो, this is the peak of globe. So here equator. अब हमने क्या पढ़ा कि sun rays fall directly over the equator and spread over a small area, making this region hotter. अब sun की जो रेज हैं वो इक्वेटर, जो ये सेंटर में लाइन है, यहाँ जो जितने भी इस एरिया में लोग रहते हैं और इस एरिया पे सन की जो हीट है वो डायरेक्टली पड़ती है. रेदर देन अगर हम बात करें नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, यहाँ पर स्लांटिंग, जैसे मैंने बताया, मूविंग टुवर्ड द पोल्स द रेज बिकेम स्लांटिंग. तो यहाँ पर तिरछी किरणें पड़ती हैं, जिसके कारण मतलब पूरा साल इन रीजन्स में क्या होता है? ठंड होती है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाइट अबव द सी लेवल. व्हेन we move to higher altitude there is decrease in temperature. इसका मतलब है जैसे जैसे हम हायर अल्टीट्यूड जगहों पर जाते हैं वहाँ का टेम्परेचर डाउन हो जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हिल स्टेशन लाइक शिमला एंड ऊटी आर कूल इन समर अनलाइक चेन्नई और दिल्ली. अब गर्मियों की छुट्टियों में हम घूमने कहाँ जाते हैं? शिमला या ऊटी या हिली एरियाज़ में, बिकॉज हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. जैसे चेन्नई और दिल्ली की यहाँ हम बात कर रहे हैं. द एयर क्लोजर टू द अर्थ सरफेस इज डेंस एंड अब्जॉर्ब मोर हीट. इसका मतलब है जो एरिया अर्थ के बहुत क्लोज होते हैं वो मोर हीट ऑब्जर्व करते हैं, जैसे हमने पिक्चर के थ्रू अंडरस्टैंड किया. इक्वेटर्स की रेज जो है वो सन की रेज इक्वेटर पर पड़ती हैं. दिस मेक्स प्लेस एट लोअर एल्टीट्यूड हॉटर. इसके कारण यहाँ जो एरियाज़ हैं वो बहुत गर्म होते हैं. इट अब्जॉर्ब्स लेस हीट मेकिंग द प्लेसेस इन हिली एरिया कूलर. क्योंकि हाइट है, मतलब सी से, समंदर से जो एरियाज़ बहुत दूर हैं वो पूरा साल ठंडे रहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाइट अबव द सी लेवल. लुक एट हियर दिस पिक्चर. एल्टीट्यूड मतलब सी से कितनी ज़्यादा जो हिलीज एरिया दूर है वहाँ वो एरियाज कोल्डर रहेंगे. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी. प्लेसेस नियर द सी कोस्ट एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट. इसका मतलब है जो प्लेस सी कोस्ट के पास है, नियर है, जो समुंदर के किनारे हैं, जैसे बॉम्बे, चेन्नई, गोवा, है ना, तो यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है. दिस इज़ ड्यू टू द सी ब्रीज विच ब्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड. इसका मेन कारण है सी ब्रीज, जो ठंडी हवाएं हैं, समुंदर की हवाएं हैं, वो ब्लो करती हैं लैंड की तरफ. सो कोस्टल लोकेशन टेंड टू बी कूलर इन समर एंड वार्मर इन विंटर देन प्लेसेस. इसका मतलब है कि कोस्टल एरिया जो समुंदर के किनारे हैं वो गर्मियों में भी ठंडे रहते हैं और सर्दियों में गर्म रहते हैं. रीजन्स फ्रॉम द कोस्ट हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट
फॉर एग्जाम्पल समर आर वेरी हॉट एंड विंटर आर वेरी कोल्ड। कभी कभी ये होता है कि समर्स जो वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी होती है, कहाँ पर, सी के किनारे जो एरियाज़ हैं। विंटर आर वेरी कोल्ड, और जो ठंड में ये एरियाज़ बहुत ठंडे रहते हैं। तो यहाँ का जो मौसम है वो कैसा रहता है, क्लाइमेट मॉडरेट।